गुड इवनिंग। रामानंद जी, आज भी आप अकेले हैं? कोई बात Yes, sir, I am trying, so some people may come. नहीं। ओके। Yeah, so good evening, all of you. This is I would say, this is the last day of discussion because we have been touch since 10 to 11 days and discussed many things about the management, introduction of management, and the sales activities and the persons who are dealing the various kind of activities and responsibilities. We have discussed a lot of things. So we are discussing now MVE 006, and that talks about the sales management and specifically pharmaceutical sales management that we have discussed. So today we will try to cover three of units of MV6, and if time permit, we have already one unit, that is six unit 6 of MVE5, although which is not available on eGyan course, but I tried to collect it from the source. So don't wasting our time. We just uh, go through our topic. So today's unit, that is 16, that is talks about sales organizations. There are We have discussed the many types of organizations which are dealing kind of productions. Some are dealing for the kind of services, and many of dealing kind of human resource activities. But this unit talks about that sales organization, which kind of sales organizations. Although we have discussed various sectors of sales, that is firm and retailers, distributors, and then the salespersons who is dealing the personal selling. That may be the medical representative and sales agent, etc. So, what are the sales organizations? Uh, by the name, it is very clear the organization which is dealing sales. It is not dealing productions. It is not dealing kind of collection of raw material and purity of raw material and the further process of raw material for making the product. This is dealing, the organization is dealing only sales process, and sales process include kind of sales relating promotional activities, sales relation relative activities that we have discussed yesterday. So once sales plan has been formulated, we have discussed various sales plan in the previous units yesterday, and it's described the beyond the plan. Whatever we have planned for the sales, we have planned many types of plan: territory based, product based,
and company size base, and this client base. There are many kind of sales plan. So it is assumed that once the sales plans has been formulated, the next logical step is to organize a sales force to achieve the enterprise objective. What is the enterprise objective? To get the maximum sale and maximum profit. That is the prime objective of the sales force. And who is the sales force? Sales force, the person is involved in selling. That may be the distributor, that may be the stockist, that may be the this medical representative, or the person who is dealing selling. Decisions must be made as to the type of sales task required to be performed, and as to how the sales people should group together to ensure effectiveness and efficiency. इसके बारे में भी हम कल बात कर चुके हैं कि हमें सेल्स के लिए हमें इफेक्टिव लोगों को चुनना है, अप्रोप्रिएट लोगों को चुनना है, जो डिफरेंट काइंड की टेरिटरीज एंड सिचुएशंस में चीज़ों को हैंडल कर सकें, एंड make ensure to delivery of product at the doorstep of the customer. And there are so many ways. The sales, personal selling is one of them, and the others online modes are also there. The scope of their sales responsibilities like line authority and accountability must be defined. ये भी हमने कहा कि there are the person who is involving in the sales, they all are have some kind of responsibility and accountability, so that the product may reach at the doorstep or to the nearest location of the customer, so that access the product may be accessible easily. And yes, there are so many promotional activities we have discussed. The salesperson also has to do the same to attract the market, and to attract or to make motivate and kind of arouse the need of the customer to purchase or to buy the product. So this is the responsibility of sales force who is dealing the selling. So various things we have discussed. So today we will discuss what is the sales organization की क्या जरूरत है, what is the need of sales organization, process of designing of sales organizations, and difference between the different kinds of sales organizations, process of development of territories. There are so many territories based on the sales process and activities, various kind of specialization in field sales force. You know that we have already discussed various kind of sales force. Sometimes the sales force may use the territory locations for selling the product, and they may also be use the method of personal selling, so that they can interact, they can get feedback of the customer consumer, so that they can forward to the highest authority or the top level management. And the role of sales executive may be the medical representative, and the this retailer, all the known as sales executive. So needs for sales organization, as we are talking since last in this 4 5 days, that the basic purpose of any organization, any firm, any factory is to get the profit or to get the delivery of their product in the market, so that that product may be utilized by the client and consumers, and as a reward they may get money from the consumer and customers, and they can further extend further that money can be utilized for further growth and development of the company, as well as the development of the human resource and the employee who is working in the firm and organization. Through your exposure to the previous units जो हमने पढ़े हैं, you know that is the sales organization which bridge the gap between the market and the productive capacity of the firm. Yes, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि sales force है, sales organization है, और if there is a company exist, so the sales department, sales organization, a sales unit is also exist in the firm and organization, so that who can look after the sales activities and the further actions of the sales force, so that the effective delivery may be
may take place in a good manner so that all consumer and customer may get their product. So as the market change, the sales functions accommodates through adjusting its organization and manner of operations, shift in the size of market operations, market trends, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस, ये सब हमने पढ़े हैं कि सेल्स फोर्स को किस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह की सेल्स फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय करनी चाहिए. If the training is required, that training must be given time to time so that they may be motivated to get uh, involved in that particular difficult, or you may say the different change of environment, and they can survive there. So for that training and all, these are the very important things. And who did this kind of activities, that is did by the sales organization, and further by the recommendation of sales organization, human resource management do the same activity to get involved their workforce for the kind of orientation and further training of the employee. Define lines of authority. Any sound sales organization define the relationship between pupil and organization in term of authority, responsibility, and accountability that we have discussed. So every salesperson should have these kind of characteristics, that he or she should be responsible, accountable, and further authority means they should be very much confident that their product is uh, for the consumer and customers as per their needs only. So it is important to define and identify the flow of authority, indicate where responsibility lies, specify who is to be the held accountable and to whom. So definitely Salesforce is accountable to the consumer as well as the firm where they belongs to. You are already familiar with the concept of line and staff authority. The organization of the sales department should enable and sales personnel to identify whether their authority is line or staff or functional. So the basic purpose of this, that every sales force should be well acquainted, well trained to have authority to sell the product and to have the responsibility and should bear the accountability by the delivery of the product to the consumer as well as customer. Ensure that all necessary activities are assigned and performed. ये workforce को ensure करना है कि whatever the activity and this assigned work is assigned, that should be performed in time and very effective manner. Establish line of communication. Line of communication talks about the behave and the interaction between the sales force and the customer, that should be very kind enough, and the main motive of salesperson should be kind of to arouse the need of customers so that they can buy their product. Provide for coordinations and balance means if we can take the example of medical representative, he should be very polite and kind enough to interact with their customers and consumers, and should build the repo that the product whatever he is selling that have good quality. So this is possible only and only if the person that is known as sales person or the medical representative should have the proper coordination and the balance of talking, balance of behaving, balance of interacting with the customers. Provides insight into avenues of advancement. Whatever this talks about, whatever product is coming and whatever product is selling by the selling personal seller, that is medical representative, he should give enough confidence that in the technological change and in the new environment their product are very suitable to the customer. It is the duty of the medical representative or the person who is doing personal selling. सो वो अपने जो कस्टमर है उनको ये एश्योरेंस दे दैट प्रोडक्ट इज एज पर द present change of environment and present need of the customer. Economics on executive times.
देखिए टाइम टू टाइम लोग जो आपके कस्टमर है दे वांट इन कॉम्पिटिटिव टाइम और इन कॉम्पिटिटिव मैनेजमेंट एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स, so they want the product of good quality but at the cheapest place or economic price. So the salesperson should ensure the customer and consumer that their product are at par of the others, even and their product are much economic than other products. So this is the kind of responsibility of the sales force. They should take care by interacting the customer or consumer, whatever is the डेवलपिंग ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग किस तरह से अपनी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं? इफ वी स्टार्ट ए न्यू एवेन्यू, न्यू फैक्ट्री, न्यू फर्म, सो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इन रेस्पॉन्स टू मार्केट एंड कंपनी रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी या कंपटीशंस होंगे या मार्केट की जो डिजायर होगी, उस तरह से आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं। प्राइमरी to the development of sales organization is the identification of the expectations of top management as in respect of the sales functions and the place of the sales department in the total organization structure। Means पहले जो सेल्स डिपार्टमेंट जो बनते हैं वो एज पर द टॉप मैनेजमेंट की डिजायर से बनते हैं कि बिकॉज दे प्रोवाइड द टारगेट, इतना टारगेट हमें अचीव करना है इन पर्टिकुलर टाइम। So they always decide which type of sales organization should be developed in their firm and organization. However, it can be changed. It is the kind of having the changing ability from time to time by looking the competitive market and business in the environment. So it can be changed as per the need and society and in changing environment. So these are the steps इनको follow करके ये हम अपना डिपार्टमेंट में, अपने फर्म में एक सेल्स डिपार्टमेंट या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे। और ये दोनों पर हमारी जो कंपनी की टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस टाइप के फंक्शंस होंगे सेल्स के, या फिर जो मार्केट की जो नीड्स हैं जो अराउज हो रही हैं टाइम टू टाइम। सपोज कीजिए को टेक्नोलॉजी इनबिल्ट हो गई है तो सेल्स डिपार्टमेंट में कंप्यूटर आ जाएंगे, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम। और जो मेन है इम्पोर्टेंट हमारे लिए कस्टमर, उस कस्टमर ओरिएंटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं उनके बेस्ड में हम अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, बिकॉज इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज नॉट स्टैटिक कि एक बार सेल्स डिपार्टमेंट खुल गया और वो ऐसा ही रहेगा। इट हैज़ द चेंजिंग एबिलिटी। सो नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन इन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। It is very simple example. You can take the many examples which are around you. If we take the kind of Patanjali, then Patanjali is the firm and organization who is selling or the pharmaceutical product in the society. So the main functions of the head office, that is sales counter also there, but the same time they have the various franchises, various shops around the country in every each and every city. Even now in the days there they have the kind of shops and their retail market in the village also. So once we are selling all the product from the central place, that is known as centralization. And if we are giving the authority, we are giving the permission, we are having the locations from where we can start our sales of products. So this is the called decentralization. So in India, there are both type of sales organization, centralized also as well as decentralized also. So this is मैंने कहा कि ये साइज के अकॉर्डिंग हो सकता है। इफ द साइज ऑफ कंपनी और फर्म इज वेरी स्मॉल, so there may not be need of decentralization. They maybe deliver their product from the central place. If the company is big and not able to handle the sales from the central place, there is a provision or there is a need for decentralizing the product sales organization across the country, even the districts, even the different locations from where the product can be delivered to the customer. So basic types of organization is structure.
बेसिकली कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा। मार्केटिंग मैनेजर को भी देखिए दो पार्ट में बांट ले, डिसेंट्रलाइजेशन है कि साउथ में होगा, एक वेस्ट में होगा। देन डिफरेंट काइंड के रीजनल होंगे साउथ में भी। उसके बाद में सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होंगे, फील्ड सेल्स ऑफिसर्स होंगे, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर ईच एंड एवरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। कहीं पर एक दो जो पॉइंट वो है पोस्ट है वो कम ज़्यादा हो सकती हैं based on the size of the firm and the product what we are going to sell. If the fragile products are fragile, if the products are very costly, so these department may vary. They may be minimized, there may be other position may be added. क्योंकि इसमें लाइन स्टाफ होंगे, उसके बाद में फिर फर्दर टॉप मैनेजमेंट होगी, देन मिडिल मैनेजमेंट होगी। बिकॉज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज ए इंडिपेंडेंट organization who is dealing sales activity, although that report to directly to the top management. ये एक चार्ट, सिंपल सा चार्ट बताया कि एक जनरल मैनेजर होगा टॉप पर, उसके बाद में मैनेजर प्लानिंग होगा, मैनेजर सेल्स ट्रेनिंग होगा, मैनेजर टेरिटरी डेवलपमेंट होगा, मैनेजर सेल्स प्रमोशंस होगा, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशंस होगा। और इन सबको सबके जो लाइन डाउन द लाइन है सेल्समैन्स होंगे, यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं या पर्सनल सेलिंग करने वाले पर्सन हो सकते हैं, रिटेलर्स हो सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से काम करेगा। डेवलपिंग टेरिटरीज में आपने कल भी हमने टेरिटरीज को पढ़ा है कि क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस से कोई बिग फर्म को पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट को वहीं से सेल्स कर सके, तो डिफरेंट टेरिटरीज बनाएगा वो। दैट मे बी द डायरेक्शन वाइज नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, एंड दैट मे बी द दिस जोग्राफिकल एरिया। हिली एरिया में एक होगा, प्लेन में एक होगा, और इधर कोस्टल में एक होगा, नॉर्थ ईस्ट में एक होगा। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टेरिटरीज बेस होंगी, चाहे वो डायरेक्शन वाइज हो या जोग्राफिकल एरिया हो या सिटी डेंस है, पॉपुलेटेड है। इस और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें हम लोग अपने टेरिटरी बाउंड्री बनाएंगे अपने सेल्स को बेचने के लिए। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं हमारे, जिनमें हमने कल भी पढ़ा था। कई बार हम एक ऐसा भी टेरिटरी बनाते हैं जहाँ पे दो इंसिडेंट जो एडजेसेंट यूनिट्स को भी जोड़ते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा, सपोज करिए कि पानी की बोतल का अगर हमारे पास कोई हमने कोई वो लगाया है, कोई फर्म लगाई है, तो प्लास्टिक वाला पार्ट यानी कि बोतल को बनाने वाला पार्ट एक और होगा, और उसमें जो वाटर जो कंटेंट जो उसमें भरा जाना है बोतल में, उसके लिए अलग जगह पर उसका एक वो होगा, फर्म एंड वो होगा। लेकिन बाद में एक उनको जोड़ने का काम करेगा ताकि उन दोनों को सर्विसेज लेकर के आपके पानी की बोतल तैयार हो सके फॉर सेल। इसी तरह से और भी बहुत सारे फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। देखिए सेल्स के बेस पर भी हो सकता है कि हमारी पर डे कितनी सेल्स हो रही है, उसके बेस पर भी डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा डेंस वाइज भी हो सकता है, कितनी डेंसिटी है पर्टिकुलर एरिया की। फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका जो सेंट्रल प्लेस है दैट मे बी द वेरी फार अवे फ्रॉम द फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जो सारी एक्टिविटी हैं वो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन से होती हैं। उनकी सेल्स की प्रॉपर पैकेजिंग, डिलीवरी एंड फर्दर फाइनेंशियल, वहाँ फाइनेंस का जो स्टॉक है वो भी वहीं पर रखा जाता है, कितना हमारा सेल हुआ, कितना हमारा बचा और कितना हम प्रॉफिट है। तो ये सेल्स फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं कि सारी एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, बट मिनी रूप में फील्ड में। स्पेशलाइजेशन इन फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, फील्ड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये बेसिकली होते हैं दैट में भी जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन हो सकता है, कुछ हिली एरियाज में है जैसे मैंने कहा। दूसरा कहीं काइंड ऑफ लिटरेसी और इलिटरेसी वाला भी हो सकता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि किस तरह का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि देयर आर सम प्लेसेस, सम टेरिटरी, दैट प्लेसेस आर नॉन एज फॉर
प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि आपने शुकोहाबाद का नाम सुना हो, दैट इज फेमस फॉर बैंगल्स प्रिपरेशन, and there are so many places. Agra is known as kind of petha and dalmot. So इस तरह के जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन वाले एरिया हैं, वो भी एक टेरिटरी का जो टेरिटरी का एक डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग भी टेरिटरी बनती है, और वहाँ हर टेरिटरी में सेम स्टाफिंग पोजीशन रहेगी। कस्टमर स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि किस तरह के कस्टमर्स हैं। सपोज करिए कि आपने जो आप ये फेस फेस वॉश टाइप के आपने जो आपने बनाए हैं, कुछ जो हर्बल प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इट इज़ बट नेचुरल कि जितने भी आपकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा उनकी सेल्स होगी एज कम्पेयर टू विलेज एंड रिमोट एरियाज। सो हम लोग कैसे कस्टमर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर टेरिटरी एस्टेब्लिश करते हैं, अपनी फर्म एस्टेब्लिश करते हैं फॉर फर्दर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि रोल क्या होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। इफ़ यू रिमेंबर, सेल्स एग्जीक्यूटिव को भूल जाइए, यहाँ पढ़ लीजिए रोल्स ऑफ द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बिकॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं जो आपके सेल्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाता है बाय इंटरेक्टिंग, बाय मोटिवेटिंग, बाय प्रमोशंस एंड बाय टेकिंग फीडबैक एंड बाय गेटिंग रेपो विद द कस्टमर्स and by addressing all kind of queries and complaint. So इस तरह में क्या क्या रोल्स हैं, यही सबको इनको एक एक द्वारा इन्होंने डिफाइन किया है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव के रोल हैं वही आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हैं। ये फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजर से क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। सेल्स मैनेजर एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेगा। सेल्स मैनेजर प्रमोशनल भी काम करेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी रखेगा टॉप मैनेजमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैनल्स हैं उन सब के साथ भी। और यही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो अपने कस्टमर और मैनेजमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन रखे। कोऑर्डिनेशन विद प्राइस फंक्शंस, हमेशा फीडबैक के रूप में वो हमेशा कहेगा कि ये जो प्राइस है इनको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये काम भी आपके जो मैनेजमेंट जो सॉरी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये भी उन्हीं का काम है। ये थोड़ा था आपके जो सेल्स से रिलेटिंग किस टाइप की चीज़ हैं, ये जस्ट इनका डिस्कशन था। तो अब नेक्स्ट यूनिट शुरू कर लेते हैं, चूँकि अभी हमें थोड़ा सा और तेज़ी से चलना होगा, चूँकि बिकॉज वी विल ट्राई टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग 3 यूनिट्स। सो बाय हैविंग द seconds break, we will start our So our next unit is sales forecasting and sales quotas. देखिए, सेल्स फोरकास्टिंग वो होता है, वो एक कंपनी का जो मैनेजर है, दैट मे बी द सेल्स मैनेजर, दैट मे बी द पर्सनल मैनेजर, दैट मे बी द टॉप मैनेजमेंट, इन सब का जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे शुड फोरकास्ट देयर सेलिंग, कि कितना हमारा प्रोडक्शन बना है और कितना हमारा सेलिंग पॉसिबल है, किन किन एरिया में पॉसिबल है, किस किस तरीके से पॉसिबल है,
कितना वर्कफोर्स चाहिए हमें, कितना टाइम लगेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने में. These all comes under the sales forecasting and the sales quotas. डिफरेंट काइंड के जो हम लोग सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन या सब पार्ट हम लोग जो बना रहे हैं, उनमें जो हमारी सेल्स है किस तरह से अपना प्लेस टेकअप करेगी, ताकि हमारी जो सेल्स है वो हमारे जो फोरकास्टिंग हमने किया है, जो हमने टारगेट हमने किया है, उसको हम लोग टाइमली अचीव कर सकें. इस यूनिट में हम यही सब पढ़ेंगे. तो लेटेस्ट सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है? एक क्विक रेप्लिकेशन, जिसको हम सेल्स फोरकास्टिंग कहते हैं, कि हम based on analysis, past analysis and future environment, future competitive environment, analyzing the things, then we forecast the target कि हम इतना अपना सेल हम अपना मंथली टाइमली इस पीरियड में हम लोग कर पाएंगे. एंड अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट एम ऑफ द फर्म इज टू गेट द प्रॉफिट, उसकी भी फोरकास्टिंग करते हैं. और वो फोरकास्टिंग पॉसिबल है सेल्स फोरकास्टिंग की. जब तक हमारी सेल नहीं होगी, we cannot assume the forecasting of profit and other thing. So sales forecasting is an estimation of projected sales for a time period कि उस particular time में कितना हमारा sales possible है. Simply speaking, the process of sale forecasting involve reviewing परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री आप एनालाइज करें कि कितने लास्ट ईयर में कितना प्रोडक्ट सेल हुआ, कितनी सर्विसेज हमें देनी पड़ी, इससे रिलेटेड कितना हमें मार्केटिंग करना पड़ा, कितने हमें सेल्स एफर्ट्स करने पड़े फर्म में टू गेट द आउटपुट. उसी के बेस पर हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि अब हमने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दिया है, हमने अपने यहाँ पर कुछ जो मशीन्स हैं वो लगाई हैं, हमने अपने यहाँ पर कुछ आईटी हमने इनबिल्ट किया है, टेक्नोलॉजी हमने इनबिल्ट किया है, वर्कफोर्स हमने बढ़ाया है. ऑन दैट बेस हम लोगों की सेलिंग कितनी पॉसिबल है, दैट एस्टिमेशन इज नॉन एज सेल्स फोरकास्टिंग. और वो किस किस पर है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के होती है, इकोनॉमिक और कम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजिकल, पब्लिक पॉलिसी, इन सबको जैसे मैंने कहा है. एंड एज वेल एज द बायर बिहेवियर, कहीं जो हमारा खरीदार है उसके बिहेवियर में अगर कोई चेंज आया तो उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है बाय डूइंग द सेल्स फोरकास्टिंग. Sales forecast are time span related and therefore as term as short term forecast, overcoming time period of up to year minimum, मीडियम टीम. बेसिकली ये जो फोरकास्ट है वो ऐसा नहीं है कि हम, इसके बहुत सारे तरीके हैं. कुछ लोग शॉर्ट टाइम फोरकास्ट होती है, जैसे 1-2 महीने की या 6-7 महीने की, हम अपने अगले 6 मंथ में या 1 ईयर में कितना हम लोग सेल्स कर लेंगे. कुछ होती है हमारे मीडियम टीम फोरकास्ट के, हम लोग 5 ईयर्स में हम लोग कितना अपना प्रोडक्ट का हम लोग सेल्स कर पाएंगे, कितना प्रॉफिट हम लोग करा पाएंगे, कितना बाय कंसीडरिंग द ऑल फैक्ट, changing environment, competitive environment, technological interventions, public policy and government policy as well. So by taking these all considerations, we can make our plan. This medium team of forecast. एक होता है लॉन्गर. हम अपना सपोज करिए हम 10 साल का रख रहे हैं या एक पर्टिकुलर टाइम का रख रहे हैं. जैसे सपोज करिए अगर हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी हम वारंटी ही 10 ईयर दे रहे हैं, तो फिर उसके लिए हम 10 ईयर का हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा कि आफ्टर 10 ईयर हम, क्योंकि 10 ईयर तो उसकी हमें सर्विस देनी है, हमें उसकी रिप्लेस करना है, हमें जो उसमें जो काम कर रहे हैं वर्कफोर्स, तो ये हमारी लॉन्गर टाइम जो है फोरकास्टिंग होती है. सो ये टाइम पे बेस है कि कितने आपको कितने टाइम की, बेसिकली इसमें टाइम सीरीज इन्वॉल्व है कि कितने टाइम के लिए हम वो पर्टिकुलर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, और उन सब में जितने भी स्टैटिस्टिक्स लगती है उसके बाद ही हम फर्दर फोरकास्ट कर पाएंगे. मीन्स काइंड ऑफ कॉरिलेशन, रिग्रेशन, ये दीज स्टैटिस्टिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फोरकास्टिंग द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ द सेल्स प्रोडक्ट. ये है आपका फोरकास्टिंग. मार्केटिंग सेल्स फोरकास्ट, मैनेजिंग सेल्स फोरकास्ट. देखिए हम लोग जो फोरकास्ट करते हैं, 2 तरह की हम लोग फोरकास्ट करते हैं. एक बाय कंसीडरिंग द ऑल चेंजिंग environment, political pressure, public as well as government policy, internal hurdles, training and all, and this technology erosions. इन सबको हम लोग कंसीडर करके हम लोग सेल्स फोरकास्ट करते हैं. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम एक सिंपली
अपनी जो फर्म है, अगर हमने देखा कि हमारे वहाँ पर फर्म में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स नहीं है, तो हम सेल्स को फोरकास्ट मैनेज भी करते हैं कई बार, कि हम उन सब चीज़ों को, जितने भी हमारे हिंड्रेंस आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उन सबको एक तरह से मॉडेस्ट करके, या हम एक स्टैंडर्ड वो लेकर के, एनवायरनमेंट लेकर के हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि अगर ये सब चीज़ें ठीक रहीं तो हमारा इतना सेल्स पॉसिबल है। तो इसको हम सेल्स मैनेजिंग सेल्स फोरकास्ट कहते हैं। व्हाट टू डू व्हेन सेल्स फोरकास्ट डिफर, अगर आपकी फोरकास्ट डिफर होती है तो आप क्या करें। देखिए, जो भी फैक्टर्स हैं जो बीच में इंटरवीन के रूप में आते हैं, जो हर्डल्स के रूप में आते हैं, जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा फंड का फ्लो हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर्स हो सकता है, सोशल स्टेगमाज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, या हमारी जो वर्क फोर्स है उसका ट्रेनिंग एंड ऑल हो सकता है, उनके वेजेस एंड पर्क हो सकते हैं। तो इन सबको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और इफ़ वी आर फेलिंग, वी आर गेटिंग डिफर फ्रॉम द सेल्स फोरकास्ट, तो हमें इन सब चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। प्रमोशंस जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम वो जो अपना जो टारगेट हमने किया है उसको हम अचीव कर सकें। यही है व्हाट टू डू। अगर आपकी सेल्स जो भी उसमें रीजंस हैं उन सबको रिमूव करने की कोशिश करें, उन सबको एनालाइज करें। मॉनिटरिंग द सेल्स फोरकास्ट, इस सेल्स फोरकास्ट को मॉनिटर कैसे करें, बिल्कुल सेम वही है जिस तरह से आपने चीज़ें, जो चीज़ें आपने एनालाइज की हैं, जो फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं सेल्स फोरकास्ट को, उनको मॉनिटर कीजिए कि कौन सा फैक्टर्स उसमें अफेक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको रिमूव या उसको मॉडेस्ट करने का प्रयास कीजिए बाय डिफरेंट वे, जो एक मैनेजर का काम है। और वो जो मैनेजर उन सबको मैनेज करने का काम करता है सेल्स फोरकास्ट में, जो भी अगर इश्यूज हैं तो। सेल्स फोरकास्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, जब कोई नया प्रोडक्ट होता है तो इसकी सेल्स फोरकास्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके लिए हम पास्ट हिस्ट्री नहीं देख सकते कि हमारे लास्ट ईयर में कितना सेल्स हुआ है। तो न्यू प्रोडक्ट के केस में हमें जो सिमिलर प्रोडक्ट जो मार्केट में या जो हमारी खुद की कंपनी के हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड देखना होगा, उनका एक्सपीरियंस देखना होगा किस तरह के हैं, और जो डिफरेंट स्टडीज हुई हैं उनको भी देखना पड़ेगा। मार्केटिंग रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको देखना पड़ेगा। जो टेस्ट मार्केट रिजल्ट हैं, सपोज करिए किसी नए प्रोडक्ट का कुछ रिजल्ट है, कोई मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 2 साल पहले, तो वो भी एक नया प्रोडक्ट के रूप में ही था। उसमें उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या क्या उन्होंने अपॉर्चुनिटीज उनको मिली, ऑन दैट बेस वी कैन फोरकास्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट आल्सो। सॉरी, डिमांड बिहेवियर, हम किस तरह का बिहेवियर है कस्टमर का, किस तरह की चीज़ों को वो चाहता है, इसकी भी वो भी एक बेस है फोरकास्टिंग का फॉर न्यू प्रोडक्ट का। Sales quotas. A sales quotas is a quantitative goal assigned to a sales unit relating to a particular time period. A sales unit may be a salesperson, territory, branch office, region, distributor, whatever. Sales quotas are used to plan, control, and evaluate selling activities of company. बेसिकली सेल्स कोटाज होते हैं कि हम अपने एक कंपनी हमारे पास से, हम इंडिया में हम डिफरेंट कोटा में बांट दें कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमें इतना हमें रिकवरी चाहिए, इतना हमें सेल्स, हमारा जो टारगेट है वो होना है, इतने लोगों को हमने सेल्स हमें बेचना है। तो यही है, फर्दर उसके लिए हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये बिल्कुल टेरिटरी की तरह है ये, इसमें कोई नया नहीं, बस उसको नाम दे दिया कि उसको हम पर्टिकुलर कोटा कहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारी सेल्स का एक क्वांटिटेटिव रूप में, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव रूप में काम करेगा कि हमें इतना पैसा हमें अर्न करना है बाय सेलिंग अवर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये आपका सेल्स कोटाज है। क्यों कोटाज बनाते हैं, क्योंकि जब तक कोटाज नहीं बनाएंगे तब तक लोगों को गोल नहीं मिलेगा, लोगों को एक तरह से मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एंड दैट मोटिवेशन कंपनी यूज टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू देयर एम्प्लॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंट्रोलिंग सेल्स पर्सन एक्टिविटी, जो सेल्स पर्सन है वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, उनको मॉनिटरिंग करने का, उनको कंट्रोल करने का काम भी इन कोटाज में होता है। क्योंकि जब उसको एक टारगेट दिया गया है, इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मीट द टारगेट एंड
तो उसमें हमें कंट्रोल करने का एक टाइम मिलता है कि हम उसको फर्दर मोटिवेट करें या फर्दर उनको कोई और जॉब असाइन करें जो उनके सूटेबली फिट हो। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, हम उससे परफॉर्मेंस इवेल्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल की। कंट्रोलिंग द सेलिंग एक्सपेंसेस, हम फ्रॉम सेंट्रली हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर सकते कितना पैसा खर्च हो रहे हैं, तो डिफरेंट कोटाज होंगे, वहीं से हम लोग जो सेल्स जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। मेकिंग इफेक्टिव कंपनसेशन प्लान, सेम है, सेंट्रल प्लेस से हम लोग कोई प्लान प्रॉपर नहीं कर पाएंगे कि कितना हमें सेल आउट करना है प्रोडक्ट और उनके बेस पे हम लोगों को कितना कंपनसेशन देना है। तो ये भी डिफरेंट, अगर स्मॉल स्मॉल कोटाज होंगे तो वहाँ से अपने जो एम्प्लॉय हैं उन सबको काइंड ऑफ कंपनसेशन एंड इस इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं, इसलिए भी ये कोटाज बनाए जाते हैं। हाउ कोटाज आर सेट, क्यों कैसे बनते हैं? ये सेल्स वॉल्यूम होता है, फाइनेंशियल कोटा होता है, एक्टिविटी कोटा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एबव कोटा, यानी कि इनको जोड़ करके हम एक अलग भी कोटा बना सकते हैं। तो सेल्स कोटा बहुत क्लियर है कि हम किस पर्टिकुलर कोटा से कितना सेल्स वॉल्यूम हमें देना है। वॉल्यूम फाइनेंशियल कोटा है कि हम पर्टिकुलर एरिया से हमें अर्न करना है, कितना हमें पैसा इकट्ठा करना है, फर्दर हमें कितना पैसा हमें इंसेंटिव या प्रमोशंस या इन सब में भी हमें देना है। तीसरा एक्टिविटीज, हम किस किस काइंड की एक्टिविटीज करेंगे, ये भी एक कोटा में डिसाइड होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड द एक्चुअल एक्टिविटी डन फॉर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये यही है। हम लोग प्रॉफिट देखते हैं, फाइनेंशियल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंस हमारा हुआ फॉर द इंसेंटिव एंड कंपनसेशन आल्सो। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सेल्स कोटा प्लान, अगर मतलब अगर हमारा कोई अच्छा कोटा प्लान है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक तो रियलिस्टिक अटेनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हम अगर छोटे छोटे कोटा होंगे तो हम अपने कस्टमर को अटेन कर पाएंगे, उसको एंटरटेन कर पाएंगे और एक रियलिस्टिक उनको सर्विसेज और उनको गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे जो हमारी कंपनी ने सेट किए हैं। एक्यूरेसी आएगी हमारी, जितने हमने ऑब्जेक्टिव्स हमने फ्रेम किए हैं टू फॉर सेल्स, सारे ऑब्जेक्टिव को हम प्रॉपर मॉनिटर कर पाएंगे, प्रॉपर उनको अचीव कर पाएंगे अगर वो छोटे लेवल कोटाज के रूप में हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। बड़े लेवल से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो वर्क फोर्स है वो हेट्रोजीनियस हो जाती है, लेकिन सेल्स कोटाज में हमारी जो वर्क फोर्स है या जो प्लानिंग है, जो रेगुलेशन है, वो होमोजीनियस होते हैं। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, यस, चीज़ों को समझने में और एडमिनिस्ट्रेट करने में इजीली होती है, क्योंकि कोटाज से ही पॉसिबल है, सेंट्रल प्लेस से पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि छोटा सा एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ लोगों को काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहीं अगर सेंट्रल प्लेस का अगर उन पर प्रेशर होगा तो उनका जो अचीवमेंट उनको लेना है, गोल उनको लेना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फेयरनेस रहेगी काम करने में। ये हमारी जो सेल्स कोटाज के जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसके बाद में ये समरी है। देन इसको भी हम फिनिश करते हैं। वी विल ट्राई टू take the third unit, and if time permit then we will take remaining unit of MVE5, let's talk about the different decisions making models. This is the last unit of MVE006, which talks about the various sales activities of the product and the various actions plans for the
final delivery of product at the doorstep of customer. So that last unit talks about the sales budgeting and control. किस तरह की सेल्स के लिए हम लोग किस तरह से हम लोग बजट बनाते हैं और फर्दर हम लोग किस हाउ टू कंट्रोल दीज बजट allocations for the further delivery of the budget. तो बेसिकली बजट को समझने की जरूरत है पहले कि बजट होता क्या है। बजट किसी भी एक्टिविटी का, फाइनेंशियल एक्टिविटी का एक प्लान होता है कि हमें पैसा कितना हमें फर्दर हमें चाहिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। एंड व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी इज दैट प्रोडक्शन ऑफ सेल्स एंड द मार्केटिंग प्रमोशंस एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। तो ये हमारे कुछ एक्शंस है और इन एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए या फुलफिल करने के लिए वी रिक्वायर सम मनी एंड दैट एलोकेशन ऑफ मनी इज कॉल्ड बजट, बजटिंग और बजट प्लान। तो इसको हम लोग सेल्स के केस में हम लोग किस तरह से हम लोग बजट करेंगे और किस तरह से उसको कंट्रोल करेंगे, दैट इज आवर टॉपिक। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ए सेल्स बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान depreciating how resource should best be allocated to achieve the forecast sales. The purpose of sales budgeting is to plan for and control the expenditure of resources. किस तरह से हम उसको मनी, मटेरियल, पीपल एंड फैसिलिटीज को किस तरह से हम लोग एलोकेट करेंगे इन रिसोर्सेज का, नेसेसरी टू अचीव द डिजायर सेल्स ऑब्जेक्टिव, जो हमने सेल्स ऑब्जेक्टिव लिए हैं या जो टारगेट लिए हैं उनको अचीव करें। सेल्स फोरकास्ट एंड द सेल्स बजट आर देयर फॉर intimately related as much as if the sales budget is inadequate the sales forecast will not be achieved. yes, इसीलिए अगर सपोज करिए हमने एक सेल्स फोरकास्ट किया और उसके लिए हमने कुछ पैसे हमने एलोकेट किए, लेकिन अगर हमने प्रॉपर बजटिंग नहीं किया और वो जो मनी है वो खत्म होगी, तो फिर विदाउट मनी और इन एब्सेंस ऑफ फर्दर फाइनेंशियल सपोर्ट द कंपनी और फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव द फोरकास्ट। Sales budget by relating sales obtained and resource deployed also act as a mean for evaluating sales planning and sales efforts. Its aim at attaining maximum profit by directing the emphasis or most profitable segment, customers and product. Basically बजट, जो सेल्स बजट का जो काम है वो है कि आपके जितने भी सोर्स अवेलेबल हैं, दैट मे बी द फाइनेंस, दैट मे बी द वर्कफोर्स, that may be the material which is being prepared and which is being used as a raw material, and what are the facility, that may be the machines main and जो आपकी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है या जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लगी, ये सब आपके इन सब रिसोर्सेज का एलोकेशन ही कहलाता है आपका बजटिंग। सो इन दिस टॉपिक हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि किस तरह का सेल्स बजट होता है, किस तरह से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं सेल्स मैनेजमेंट को। कुछ मेथड्स हैं जो सेल्स बजट बनाने के लिए काम आते हैं या कुछ अप्रोचेस हैं, और इस सेल्स को आप लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे उसके कुछ मेथड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले पर्पज ऑफ द सेल्स बजट, हालांकि ये इसमें थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हम क्यों बजट प्लान करते हैं, क्यों बजटिंग करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया, उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा लाइट मिला होगा। फर्दर ए सेल्स बजट जनरली सर्व थ्री बेसिक पर्पज। जस्ट सेकेंड।
Yes. So the purpose first is planning, budget allocation or budgeting is required for planning of our activities, coordinating with the different type of divisions and units, and controlling for the overall controlling budget, sales budget is required. So these are the three purpose for budgeting of any firm and any organization. So, as a planning tool, what is budget? In order to achieve goals and objectives of the sales department, sales managers must outline essential tasks to be performed, and the compute means analyze the estimated cost required for their performance. Budgeting therefore help in profit planning and provide a guide for action towards achieving the organizational objectives. Means in a simple way, आपका जो प्लानिंग है वो पहले से पहले एक चीज़ों को बताता है कि किस पर्टिकुलर एक्शन के लिए हमें कितना एलोकेशन चाहिए, कितना फाइनेंशियल फंड चाहिए और कितनी हमें फर्दर चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, जो हमने फोरकास्ट किया है अपना टारगेट, उसको हम अचीव कर सकें। तो ये इसमें भी हमारा प्लानिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल है बजट का, या बजटिंग में प्लानिंग का इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा कोऑर्डिनेशन के रूप में, as well as we know the selling is only one of the important function of marketing. Yes, to be effective it needs supports from other element of marketing mix हम जानते हैं 4P जिसको हम बोलते हैं, उसके उन चारों में जो 4P है, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, प्रमोशंस एंड जो आपका जो सेल्स का जो रिलेटेड जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, उन चारों से में आपस में कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है आपका सेल्स बजट। The process of developing realistic sales budget draw upon the background and forward linkages of selling with marketing, and it turn bring about necessary integration within the various selling and marketing functions and coordination between sales, finance, production and purchase. इन चारों में सेल्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन और परचेज में भी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इससे बजट से आसानी होती है कि हम इन सब चारों में कोऑर्डिनेट कर पाएं। कंट्रोल, दैट इज वेरी क्लियर कि ओवरऑल कंट्रोल वो बजट से ही पॉसिबल है कि किस पर्टिकुलर फंड में, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, किस पर्टिकुलर यूनिट को कितना बजट की ज़रूरत है। इसका प्रॉपर एनालाइज करने के बाद हम उनको बजट एलोकेट करते हैं और उनसे फर्दर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो उनको फ्यूचर फोरकास्टिंग जो टारगेट्स दिए गए हैं वो उनको पर्टिकुलर अचीव करें। तो कंट्रोल देखिए, जो डिफरेंट जो हमारे जो यूनिट्स हैं, सेल्स में कितना देना है, डायरेक्ट सेलिंग में कितना देना है, प्रमोशंस में कितना देना है, एडवर्टाइजिंग में कितना देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कितना देना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि अगर आपके पास कुछ जो फर्दर जो सपोज करिए कि 60,000 या 10,000 का आपका रुपए का बजट है, तो उसको फर्दर एलोकेशन आप किस तरह से करेंगे, दिस इज द एग्जांपल। एंड ये आपके जो खुद की जो कंपनी फर्म है उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। मेथड्स ऑफ सेल्स बजटिंग, किस तरह से हम लोग सेल्स बजटिंग करते हैं। तो पहला है कि अफोर्डेबल, जो ऐसा बजट तैयार करें जो अफोर्डेबल हो। सपोज करिए आपके पास जो एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी फर्म की सपोज करिए 10 करोड़ है, तो आप जो बजट करेंगे वो ये भी ध्यान में रख के करेंगे कि हम अपने बजट का प्रॉपर यूटिलाइज करें। पता लगा कि 10 आपने बजट बना लिया 20 करोड़ का और आपके पास उतना पैसा ही नहीं है, तो बजट आपका ऐसा हो जिसको हम अफोर्ड कर सकें और हम हमारी जो कंपनी है वो विन विन सिचुएशंस में रहे। अगर हमें फोरकास्ट प्रॉपर नहीं अचीव हो पाती है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, इस तरह की हमें फोरकास्टिंग, इस तरह का हमें बजट तैयार करना चाहिए कि वो अफोर्डेबल हो। रूल्स ऑफ थम्स, ये जितने भी हमारे जो पब्लिक रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स होते हैं, उनको सबको फॉलो करते हुए हमारा बजट तैयार होना चाहिए। कम्पिटिटिव पैरिटी, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं उन सब में पैरिटी हो। पैरिटी मीन्स सेम काइंड्स ऑफ अगर एक्शंस वाले अगर हमारे डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स हैं, ऐसा ना हो कि किसी एक यूनिट को हम ज़्यादा बजट एलोकेट करें, किसी को ना करें। तो ये एक पैरिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि अगर वो जिस तरह का काम कर रहे हैं
लार्ज साइज को हमने और स्मॉल साइज के दोनों को हम सेम बजट नहीं दे सकते, तो ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क मेथड, हमारे फर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टास्क हैं, उनके बेस पर भी हम लोग बजट एलोकेट करते हैं। सपोज करिए हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसका बजट अलग होगा, क्योंकि वहाँ हम कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बेस है जिसको हम सेल कर रहे हैं तो वहाँ हमें पैसा मिलेगा भी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना बजट तैयार करते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग उसको कहते हैं कि जहाँ नया हम लोग शुरू करते हैं, हमें अभी एक पैसा भी अर्न नहीं हुआ है, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और हमने अपना, जब हमको नया प्रोडक्शन शुरू करते हैं, नया को बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहाँ जो बजट हम एलोकेट करते हैं, क्योंकि अभी हमें इनकम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे बजट को हम लोग जीरो बजट कहते हैं, जहाँ अभी हमने शुरू ही किया है किसी चीज़ को प्रोडक्ट बनाना और उसमें टाइम लगेगा फर्दर उसको वापस होने में, तो इसको हम जीरो बेस्ड बजट कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, अगर हम सेल्स बजट के प्रिपरेशन की बात करें तो ऐसे ही नहीं सेल्स बजट बन जाता है, उसके कुछ सेट वो हैं, स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला है रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास के या अपने खुद की जो हमारी कंपनी है, जो फर्म है, उनके एनवायरनमेंट को, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को रिव्यू करें, फर्दर एनालाइज करें। मीन्स आप पास्ट को देखें कि आपको पास्ट में आपने कितना बजट एलोकेट किया था और फर्दर उसमें अगर कुछ चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली कितना बजट आपको और ज़रूरत है, इसको एनालाइज करके आप अपनी मार्केटिंग का बजट बनाएंगे। यानी कि कितनी उसमें सैलरी लगी थी, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हुआ था, कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए थे ट्रैवल में, लॉजिंग में, फूड में, एंटरटेन में, कितना कमीशंस गया था सेल्स में, कितना बेनिफिट्स जो पैकेज आपने मेडिकल इंश्योरेंस ये सब अपने स्टाफ को, ग्रेचुटी ये सब दिए थे, ऑफिस एक्सपेंस कितने लगे थे फ़ोन में, मेल करने में, ऑफिस में जो चीज़ें सप्लाई हुई थी, मिसलेनियस कॉस्ट जो हुई थी, कितना प्रमोशनल मटेरियल में काम आया था, जो सेलिंग एड्स बनाए थे, अवार्ड्स आपने किए थे, सैंपल्स आपने बनाए थे, कैटलॉग बनाए थे, ये सब प्राइस लिस्ट बनाई थी, तो इसमें कितना पैसा आपने लगाया था या किसी सिमिलर कंपनी लगाया था, उनका रिव्यू और एनालाइज करके आप फर्दर एक सेल्स का बजट बनाएंगे। ये दिस इज द वन वे। कम्युनिकेटिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बेस पर हम लोग बजट बनाते हैं कि उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है, उनमें अगर कितना खर्चा आएगा, कितनी वर्कफोर्स लगेगी, क्या क्या उसमें हमें काम करना पड़ेगा, ये सब भी एक तरीका है। setting a preliminary plan for allocation of resource and selling efforts to different activities। पहले हम लोग प्रिलिमिनरी प्लान करेंगे कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हम अपना कितना रिसोर्स लगाएंगे, कितने हमें एफर्ट्स करने हैं, कितनी एक्टिविटीज़ हमें करनी है, उसके बेस पर, यानी कि कितना मूवमेंट होगा हमारे वर्कफोर्स का, उन सब के बेस बना करके आप एक बजट बनाएंगे कितनी ज़रूरत है। सेलिंग द सेल्स बजट टू द टॉप मैनेजमेंट, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है कि आपके टॉप मैनेजमेंट का जो कंसेंट है वो भी बजट बनाने में काम आता है। सपोज उनके मन में कुछ और फ्यूचर प्लान है जिसको भी इनकॉर्पोरेट करें टाइम टू टाइम, तभी आपका बजट प्रिपेयर हो पाएगा। कि बिना उनके क्योंकि कई बार टॉप मैनेजमेंट के मन में होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को डबल करेंगे या हम अपने इस प्रोडक्ट को शिफ्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से दूसरे में करेंगे, इसको भी टेक केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम बजट बनाएं तो वो टॉप मैनेजमेंट की जो जितनी भी उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करें। तो ये कुछ तरीके हैं जो बजट बनाने के हैं। बजट इम्प्लीमेंटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए बहुत सिंपल से वे में है कि बजट बन गया, बजट को बनाने के तरीके हमने पढ़ लिए, किस तरह से हमारा एक गुड बजट बन सकता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमी, सब में कुछ ना कुछ फर्दर जो चेंज करने की जो स्पेस है वो ऑलवेज होती है। तो जब हम कोई भी बजट अपना इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने देखेंगे कई बार किसी पर्टिकुलर उसमें एरिया में प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, या कहीं पे एक्सेस यूटिलाइजेशन हो रहा है, या कहीं पे अनकंट्रोल्ड हो रहा है। इन सब को मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ये फीडबैक से ही पॉसिबल है कि इस फीडबैक से हम जो फर्दर जो बजट बनाएं या फर्दर उसी बजट में अगर हम कंट्रोल कर पाएँ कि जहाँ
अनकंट्रोल्ड हो रहा है उनको हम अनकंट्रोल्ड जो रीजन्स है उनको हम लोग कंट्रोल करें। दूसरा, जहाँ पर कम हो रहा है उनके रीजन्स जाने कि वहाँ बजट कम यूटिलाइज क्यों हो रहा है, जहाँ पे ओवर या एक्सेस बजट यूटिलाइज हो रहा है उनके रीजन्स को जानने का प्रयास करें कि कहीं हमने उस पर्टिकुलर सेक्शंस में रियल में तो कहीं हम लोगों ने लेस बजट एलोकेट नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो हम रीअप्रोप्रिएशन करें उस पर्टिकुलर बजट को एक हेड से दूसरे हेड में ले जाने के लिए। यही है आपका बजट को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह से काम करेगा, यानी कि उसको हम टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं, जिसमें एक वर्ड है रीअप्रोप्रिएशन, मीन्स एक पर्टिकुलर हेड से लेकर के दूसरे हेड में डालना, दैट इज कॉल्ड रीअप्रोप्रिएशन। सो बजट में जो चीज़ें हो सकती हैं, सैलरीज एंड फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं जो हमारे बजट को अफेक्ट करते हैं और इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, तभी हम अपना बजट को एस्टेब्लिश कर पाएंगे और उसके जो अचीव कर पाएंगे जो हमारी फर्दर फोरकास्टिंग है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने जैसे बताया कि एक फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है कि आपने किसी पर्टिकुलर हेड में उसमें कम डाले हैं तो रीअप्रोप्रिएशन करके आप उस पैसे को दूसरे वाले हेड में लेके जा सकते हैं। बट ये रीअप्रोप्रिएशन होता है जिसने भी बजट बनाया है उसके अप्रूवल के बाद। ऐसा नहीं कि हमें हमारे फर्म को, एक हमारी छोटी सी फर्म है और सेंट्रली हम दिल्ली में हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ से हमें बजट एलोकेट हुआ तो वो रीअप्रोप्रिएशन वहीं से होता है जहाँ से वो बजट बनता है। तो ये लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक हेड से दूसरे हेड में हम लोग फंड ट्रांसफ़र यूज कर सकते हैं एंड फर्दर हम लोग मांग सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हेड में कितनी ज़रूरत है और जिसमें नहीं यूटिलाइज हुआ है उसको हम वापस भी कर सकते हैं कि इस हेड में हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो दीज आर द फ्लेक्सिबिलिटीज जो हम लोग बजट में यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड पर्पज ऑफ सेल्स कंट्रोल, ये हालांकि हम इसको भी पढ़ चुके हैं पहले कि हम लोग सेल्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं और क्या ज़रूरत है इसकी सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। चूँकि हम लोग एक टारगेट हम लोग दे पाते हैं, गोल्स हम लोग सेट कर पाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाते हैं, प्रॉपर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल या सुपरविज़न के कुछ तरीके हैं और कुछ रिमेडियल स्टेप भी ले सकते हैं अगर हमें कुछ पाया कि हमें कहीं कुछ फ्लॉज हैं और अपनी सेल्स पॉलिसी को रिवाइज कर सकते हैं। कुछ नए स्टेप्स हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस changing environment or productivity of sales force to improve the quality of target setting। हम अपने टारगेट सेटिंग को क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्स प्लानिंग को हम लोग टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं और बजटिंग जो फंक्शंस हैं उनको भी हम लोग रिव्यू कर सकते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग अपने सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग ऑफ सेल्स दिस सेल्स कंट्रोल हम करके हम ये अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं। सेल्स कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? देखिए, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग अपने जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट वर्कफोर्स है, डिफरेंट एक्टिविटी हैं, उनको हम लोग कंट्रोल करें तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम है और जो टॉप टू बॉटम काम करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपके जो एक पर्टिकुलर सेटअप बना हुआ है वो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव, सबके अपने अपने काम हैं और उनसे ही हम लोग फर्दर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप हम अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो सेटिंग डिटेल्स ऑब्जेक्टिव्स, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन एक्चुअल सेल्स एक्टिविटीज एंड, जैसे हमने पहले बताया था कि कोई बहुत बड़ी वर्कफोर्स है उसको आप उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पर उनको फर्दर प्रमोट कीजिए, कंपनसेशन दीजिए, उस तरह से हम उस वर्कफोर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, हम लोग डिफरेंट काइंड की रिपोर्ट्स मांगते हैं, उनसे रिजल्ट्स मांगते हैं, ये भी एक कंट्रोल करने का तरीका है। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स एंड एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, हमने बार बार हम कहते हैं कि हमारी कंपनी का मोटो है कि हम इतने % प्रॉफिट गेन करेंगे और इस बार हमारा इतना ही हुआ, तो इस तरह की कंपैरिजन हम अपने एम्प्लॉय को हम लोग शेयर करते हैं, तो वो भी एक कंट्रोल करने का तरीका है, क्योंकि उनको टारगेट के साथ उनके साथ अवेयर करा जाए कि कितना टारगेट उनको अचीव करना है। टेकिंग रिमेडियल एक्शंस, जो नीड बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, समय के अनुसार जो हमें डिफरेंट काइंड के रिमेडियल
जो एक्शंस होते हैं, जैसे हमने पहले भी कहा था कि ट्रेनिंग राइट पर्सन एंड राइट जॉब, ये भी एक रिमेडियल एक्शन है। गलती से अगर कोई व्यक्ति गलत सेक्शन में है तो उसको सही जगह पर लेके आए ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये सेल्स कंट्रोल सिस्टम है जो एक सेट रूप में काम करता है, जिससे हम अपने सारे सेल्स फोर्स को कंट्रोल करते हैं। मेथड ऑफ सेल्स कंट्रोल, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था कि हम लोग सेल्स को एनालाइज करें, कितना सेल्स हमारा हुआ है, कितना हमें टारगेट था। सेल्स एनालाइज बाय टेरिटरी, टेरिटरी वाइज हम लोग सेल्स एनालाइज करें कि हमारे पर्टिकुलर टेरिटरी में कितना सेल्स होना था, कितना अभी बाकी, और इसके लिए हम क्या हमें एक्शन और लेना चाहिए, लास्ट का टारगेट कितना था, कितना हम लोग अभी लैग कर रहे हैं जिसको हमें अचीव करना है। सेल्स एनालिसिस बाय द सेल्स पर्सन, पर्टिकुलर सेल्स पर्सन कितना सेल करता था, अभी कितना सेल कर रहा है, उसमें इंक्रीजमेंट है या उसमें वो भी कहीं अभी अभी लैग कर रहा है अपने इससे टारगेट से। तो हम लोग सेल्स पर्सन वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना अभी बाकी है। ये देखिए, जैसे पहले 95 हुआ, अब 93 है, परफॉर्मेंस कम हुई, कहीं एक 115 था, फिर इसने 117 कर लिया, इसका परसेंटेज बढ़ गया। तो ये भी हम इंडिविजुअल पर्सन का हम लोग सेल्स रिकॉर्ड देख करके हम एनालाइज कर सकते हैं कि अब इसमें और कितना ज़रूरत है। दूसरा है सेल्स एनालिसिस बाय प्रोडक्ट लाइन। जो प्रोडक्ट लाइन, जो डिफरेंट काइंड के, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट हैं, जैसे कंप्यूटर्स है या पोर्टेबल टाइपराइटर है, मैनुअल टाइपराइटर है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर है, या सेल्स एंड कंज्यूमेबल्स, स्पेयर्स एंड कंज्यूमेबल्स है। तो ये डिफरेंट काइंड के कोटाज थे, इनकी सेल्स को भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में कितनी हमारी ग्रोथ हुई और कितना हमारा अभी टारगेट से हम दूर हैं। इसको भी हम मॉनिटर करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमर्स को हम लोग, कस्टमर के बिहेवियर को हम लोग देखते हैं कि पहले कस्टमर को किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता था, अब किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। ये एक भी सेल्स एनालिसिस होता है बाय द कस्टमर, कि कस्टमर को किस तरह की चीज़ चाहिए और किस तरह उसका रुझान बढ़ रहा है। ये भी एक तरीका है सेल्स को इसको कंट्रोल करने का। मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस, देखिए कॉस्ट एनालिसिस अपने आप में बहुत सिंपल है कि हम जो हमारा जो फाइनेंशियल है, मार्केट में कहाँ कहाँ पर कितना कितना फाइनेंस लगा है, उसको पर्टिकुलर किस रूप में हमें एलोकेट करना है, उस सब की प्रॉपर मार्केटिंग जो कहलाता है वो कॉस्ट एनालिसिस कहलाता है। यानी कि हमारे कितना पैसा हमने लगाया अपनी फर्म में, कितना हमें यूज आएगा हमारे वर्कफोर्स के लिए, डिफरेंट प्रमोशंस के लिए, डिफरेंट मार्केटिंग के लिए, कितना हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा, कितने टाइम में मिलेगा, कब तक हमारी जो प्रोडक्ट है वो पूरा सेल्स हो पाएगा। ये सब हमारा मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड पर रुपीज ऑफ सेल्स, प्रॉफिट पर रुपीज ऑफ सेल्स, प्रॉफिट पर सेगमेंट, चैनल, टेरिटरी, सेल्स वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमारे बिकना, टर्नओवर कितना होगा, एवरेज वैल्यू कितनी होगी ऑर्डर की, एवरेज कॉस्ट कितनी होगी पर ऑर्डर की, टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी ऑर्डर्स की। इंक्वायरी, यानी कि ऑर्डर जो हमारा रियली में जो एस्टेब्लिश होगा, हमें कितने ऑर्डर आए और कितने हमने कंप्लीट किए। नंबर ऑफ इंक्वायरी, जैसे अपने टेलीफोन कॉल आया, ईमेल्स आया, कितने हमने जवाब दिए, कितने हमारे पास आए थे, इन सब का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर इनका वो कहलाता है मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस। इन सब के बारे में एक प्रॉपर प्लान, प्रॉपर एक्शन प्लान जो होता है वो मार्केटिंग कॉस्ट, यानी कि प्रॉपर फ्लो उसका, जो जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। यूजफुलनेस ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट, इनकी क्या ज़रूरत है कि इसकी मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस करें, क्या इम्पोर्टेंस है, वो ये है रिलेटिव कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है हमें। प्रॉफिटेबल जो है हमारी चीज़ें हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल हैं, और उसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी साइज या उनके मार्केट सेगमेंट, उन पर हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। मिनिमम ऑर्डर लेवल क्वांटिटी, कितने हमें ऑर्डर पर ईयर मिलते हैं, कितनी प्रोडक्टिविटी है हमारे सेल्स पर्सन की, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, डिफरेंट सेल्स जो प्रमोशंस हम लोग जो करते हैं, टेक्निक से यूज करते हैं, उनमें प्रॉफिट कितना होता है, या डिफरेंट मार्केट मिक्स जो हम लोग 4P की बात करते हैं, उसमें हमारा कितना प्रॉफिट होता है अगर उन प्रोग्राम्स को यूज करते हैं फॉर द प्रमोशन, फॉर द फर्दर मार्केटिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। इससे हमें बेसिकली मार्केटिंग कॉस्ट एनालिसिस के ये इम्पोर्टेंस है कि हमें क्या क्या लाभ होते हैं।
सेल्स मार्केट ऑडिट, कोई भी डिपार्टमेंट हो उन सब का ऑडिट हमें ये बताता है कि कहाँ पे हमारा गैप था और उस गैप को हम किस तरह से ब्रिज करें। हमारे जो हमने एक्शंस प्लान किए हैं अपने फर्म में लास्ट ईयर में, उसमें हमने कौन कौन से हमने यूज किए, हमने तरीके, उन तरीकों में क्या क्या हमें और सुधार की ज़रूरत है, उसको कहते हैं हम लोग ऑडिट। व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स ऑडिट, सेल्स ऑडिट में मीन्स वो आपके पास्ट की हिस्ट्री को देख करके आपने कि आपका जो सेल्स रेशो है वो बढ़ा या नहीं बढ़ा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, जो आपको जो प्रॉपर जो बजट एलोकेशन है वो है या नहीं है, और आपकी जो फॉरकास्टिंग जो अचीव हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो किस रीज़न से नहीं हुई और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हमारे ऑडिट में आती हैं। सम ऑफ द एस्पेक्ट कवर इन द सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट क्या होती है, appropriateness of selling functions objectives, role of selling functions in promotion mix or sales marketing integration, organization and work norm of the sales force and its size, recruitment, selection, promotion policy, compensation, motive, इन सब का हम लोग ऑडिट करते हैं कि चीज़ें सही रूप में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बेसिस ऑफ सेल्स कोटा, सेल्स बजट, टेरिटरी एलोकेशन प्रॉपर है या नहीं है और मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग सूटेबल थे नहीं थे। क्वालिटी ऑफ सेल्स फोर्स, अप्रेजल क्राइटेरिया ये प्रॉपर मेंटेन हुआ नहीं हुआ, प्रॉपर यूटिलाइज हुआ नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल्स फंक्शन यूज हुआ, सेल्स प्लानिंग प्रॉपर थी या नहीं थी, कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर था या नहीं था, कॉमर्शियल जो प्रोसीजर्स जो अपनाए गए हैं, यानी कि चेक जो इशू किए या जो हम लोगों ने जो मनी का जो फ्लो किया, लोगों को पेमेंट किया, वो प्रॉपर तरीके से था या नहीं था, लेजर्स प्रॉपर मेंटेन थे नहीं थे, ये सब ऑडिट ये सेल्स मैनेजमेंट ऑडिट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। अभी हमारी एक जो लास्ट यूनिट है जो बची हुई है, जो बड़ी मुश्किल से हमने उसको लिया है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन ई ज्ञान कोर्स, दैट इज MVE05 यूनिट नंबर 6। उसको 1 मिनट में आपके साथ हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर ए मिनट ब्रेक। Yes, this is the unit number 6 that we could not discuss
due to non-availability of this unit on e-Gyan course. So this unit talks about, this is the unit of MVE 005 Introduction to Management. मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि किस टाइप का मैनेजमेंट हम लोग अपने फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करते हैं, व्हाट आर द responsibility of managers and personal managers and various things we have discussed in that particular unit. So this unit talks about decision making models. See, the main responsibility of manager or firm manager is to take the decisions for the benefit of organization. So, what are the decision making models? How a manager can take decision for the different situations and for the different environment. So models are different and what they are. So हम लोग discuss करेंगे. You will probably agree that decision making is the part of everyday life. The fact that you have taken up a course of management, कोई भी आपने क्योंकि डिसीजन मेकिंग आप देख रहे हैं, आपको अपने खुद के पूरे डे में कितने सारे डिसीजंस लेने होते हैं. ये एक ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट का ही एक ये पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ. सो डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस एवरीवेयर, वेदर इट इज ए मैनेजर or whether it is a personal life. Even a family member, parents has to take various decisions for the welfare of their child, for the welfare of their wards. So these decisions, whatever we are taking, whether you are a board meeting or in a playground, then you are almost constantly making decisions, sometimes working on several एट द सेम टाइम. तो आपको डिसीजंस लेते हैं. आपने जब क्रिकेट में आप मैच खेल रहे होते हैं तो वहां भी आपको डिसीजन लेती है कि आपको हिट करना है, नहीं करना है. हिट करना है तो किस लेग से, राइट से करना है, लेफ्ट से करना है. और अगर वो कोई बॉलर बॉल फैक्टर, वो भी डिसीजन लेता है किस टाइप की वो बॉलिंग करे. और अगर इन दोनों के बीच में एक और होता है रेफरी, जो भी वो भी डिसीजन लेता है कि सच में वो जो प्लेयर है वो सच में क्रिकेट है, कोई भी गेम हो, उसमें वो आउट हुआ है या नहीं हुआ है, वो डिफरेंट सिचुएशंस में. तो डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस एवरीवेयर, बट डिसीजन कैन बी मेजर एंड माइनर. इनके जो मेजर एंड माइनर इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं, और कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिनके जो सिचुएशंस इतनी ज़्यादा वो नहीं होती कि वो हार्म हो सकें. या सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट मैच अभी शुरू ही हुआ है और हमें बॉल LBW या इस तरह की हमें डिसाइड करनी है, तो वो डिसीजन इतना हार्मफुल नहीं होता. लेकिन अगर हम बिल्कुल एट द टॉप हैं और एक ही रन चाहिए हमें जीतने के लिए, और वैसे में हमने वो रन बना भी लिया, और अगर हमारा जो रेफरी वो ये कहते हैं कि नहीं, दिस इज ये आउट हो चुका है, तो वहाँ ऐसे केस में वो डिसीजन बहुत ज़्यादा, तो ये डिसीजन माइनर और मेजर होते हैं. कई बार वो आपकी जो वर्किंग है, आपके जो टोटल जो आपका आउटपुट है या टोटल जो आपका टारगेट है, उसको भी वो डेविएट कर सकते हैं. और इवन समटाइम्स हम लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं. तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हाट इज राइट डिसीजन एंड व्हाट इज रॉन्ग डिसीजन. सो हमें एज ए मैनेजर, हमें अपना डिसीजन लेने से पहले जो डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेक्निक्स, जो मेथोडोलॉजी हैं डिसीजन मेकिंग की, उनको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है. Making decision has been identified as one of the primary responsibility of any manager. Decision may involve allocating resource, appointing people, investing capital, or introducing new product. If resource like man, money, machine, material, time, space are abandoned, clearly any planning would be unnecessary. But typically resources are scarce, and so there is a need for planning. Decision making is at the core of all planned activities. Now we can, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह की डिसीजन मेकिंग हमारे फैक्ट्री जो अफेयर्स है, फैक्ट्री जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो इस यूनिट में बेसिकली हम लोग 3 स्टेप्स जो हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं उनको हम पढ़ेंगे. काइंड ऑफ डिसीजंस जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, और डिफरेंट जो इसको हम फर्दर पढ़ना शुरू कर देते हैं. सो व्हाट आर द 3 फेसेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. वो कौन कौन सी फेसेस है
देखिए कोई भी डिसीजन ऐसे आउटराइटली नहीं लिया जाता है, कोई भी डिसीजन एक प्रेसिडेंस के रूप में पास्ट को देख करके लिया जाता है कि पास्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई थी तो किस टाइप का डिसीजन उस समय मैनेजर के द्वारा या स्वयं उस समय सपोज वही मैनेजर था तो उसने किस टाइप का डिसीजन लिया था। अब प्रेजेंट में चीज़ें चेंज हो गई हैं, चीज़ें और कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं, लोगों को वर्क फोर्स आसानी से नहीं मिल रही है या वर्क फोर्स मिल रही है तो क्वालिफाइड या ट्रेन नहीं मिल रही है, तो प्रेजेंट के साथ लिंक करके डिसीजंस को लेना होता है, ये भी एक फेजेज है। तीसरा है आपका फ्यूचर को देखते हुए कि हमारे जिस डिसीजन के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, तो इसको हम फर्दर एक तरह से काइंड ऑफ इवैल्यूएशन या काइंड ऑफ एनालिसिस करके भी हम लोग, तो ये 3 फेजेज हैं जो एक तरह से इम्प्लीकेशंस डालती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग में। तो व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन वी शुड टेक केयर ऑफ दीज 3 फेजेस। अब हम बात करते हैं कि हमारी कौन-कौन सी स्टेजेस हैं जिसमें हमारे डिसीजंस हमें सोचने की जरूरत। पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी। कोई भी डिसीजन कितने इंटेलिजेंटली लिया जाता है, जैसे बोरोइंग फ्रॉम द मिलिट्री मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, Simon described this initial phase as an attempt to recognize and understand the nature of problem as well as search for the possible causes. So basically हम किसी भी डिसीजन को इंटेलिजेंटली सोचें कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। दूसरा है डिज़ाइन एक्टिविटी। हम जो हमारी डिज़ाइन है, हमारे जो कोर्स ऑफ एक्शंस है उसमें जो डिज़ाइन हमने एलोकेट किया है प्लानिंग के रूप में, उसमें हम लोग ये देखें कि हमारे चूँकि कई ये जो डिज़ाइन है हमारी जो एक्टिविटी का, वो भी डिसाइड करता है कि किस तरह के डिसीजंस हमें लेना चाहिए। तीसरा है कि हम चूज़ जो एक्टिविटी जो हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी जो हमारी फर्म में होती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो एवरी एक्टिविटी के लिए सेम डिसीजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सो इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये 3 जो फेजेज़ हैं हमारी, इनको फेज 1, फेज 2, फेज 3 हम लोग कह सकते हैं कि पहले हम लोग देखें कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, हम क्या प्रॉब्लम है उसको हम रिकॉग्नाइज करें, फिर फर्दर उसको डायग्नोज करने के हम लोग सोचें कि हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरी आती है डेवलपमेंट फेज। अभी तो हमने सिर्फ एक काइंड ऑफ एनालाइज किया है कि किस टाइप की, आइडेंटिफाई किया किस टाइप की प्रॉब्लम है। फिर डेवलपमेंट फेज में हम लोग सर्च करें कि किस तरह के एक्शंस हमने लिए हैं पास्ट में या कौन से डिजाइन के लिए कौन सा एक्शंस लिया था। जो थर्ड फेज है, जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस की आती है, वो है हम लोग एक जजमेंट के रूप में, एनालिस्ट के रूप में, बार्गेनिंग। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा अगर प्रॉब्लम आपकी फर्म की और एम्प्लॉय की है तो उसमें मैनेजर को अपने वर्कफोर्स के साथ बार्गेन करना होता है, उनके साथ मीटिंग करनी होती है, उनको सुनना होता है। एंड ऑथराइजेशन कि हम किसी चीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स होते हैं, लेबर लीडर्स होते हैं, उनके साथ हम बैठ करके हम ऑथराइजेशन करते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय की तरफ से हमें ये एश्योरेंस दीजिए कि आगे फर्दर ये चीज़ें नहीं होंगी और ये चीज़ें कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इनको ये जो हमारा प्रोडक्ट है डिलीवरी इस पर्टिकुलर टाइम में हो जाना चाहिए। तो ये दीज आर द 3 फेजेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। द टाइप ऑफ मैनेजरल डिसीजन, किस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं जिन मैनेजर को लेने होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजरल डिसीजन। वन मे बी द पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। सम बेसिक एंड रूटीन डिसीजंस होते हैं जिनको रोज मैनेजर लेते रहते हैं। द थर्ड होता है प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। कुछ जो हम लोगों ने फोरकास्ट किया है उसके बेस पर हम लोगों ने जो प्लानिंग की है तो उसमें जो प्रोग्राम हम लोग डिसीजन इस पर्टिकुलर स्टेज पर हम ये डिसीजन लेंगे, इस पर्टिकुलर स्टेज पर ये डिसीजन लेंगे, डेट आर प्रोग्राम डिसीजन। एंड नॉन प्रोग्राम आर काइंड ऑफ इंसिडेंटल। अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई और ऐसी एक्टिविटी होती है जो उसमें सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, तो ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में सपोज करिए कि नेचुरल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें किस तरह के डिसीजंस हम लोग लेंगे, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में आते हैं जिनके बारे में हम पहले से एश्योर नहीं है, रेडी नहीं है। सो पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस वो होते हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको
टॉप लेवल तक ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस वाज सजेस्टेड बाय ये चेस्टर बर्नार्ड हैं, जिन्होंने इनको नियर 50 एगो इन्होंने एक अपने बुक में कोट किया है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव मीन्स मैनेजर. In his opinion, the basic difference between the two decisions, that is, personal decisions, cannot be ordinary be delegated to the others, whereas the organization decision can often, it not always be delegated, इफ नॉट ऑलवेज भी. तो दो तरह के डिसीजन जो पर्सनल है उसके बारे में कह रहे हैं कि पर्सनल डिसीजंस साधारण रूप में सब पर लागू नहीं किया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के बेनिफिट के लिए यूज होते हैं, उनको आप के जो एम्प्लॉय हैं उन सबको उसको ओबे करना होगा, क्योंकि वो दैट डिसीजंस इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन. इन डिसीजंस के बारे में बताइए. यदि कि प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम्ड हो गए, प्रोग्राम जो रूटीन में है, जो हमेशा चलते रहते हैं, नॉन प्रोग्राम जो यूनिक हो गए या वन शॉट हो गए, ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही चलते रहेंगे. ये तीन तरह के डिसीजंस हैं. अगर हम फर्दर और इसको आगे बढ़ें तो हमारे कुछ और डिसीजंस आते हैं, जैसे मैकेनिस्टिक डिसीजंस, एनालिटिकल डिसीजंस. द थर्ड इज जजमेंटल डिसीजन, एडेप्टिव डिसीजंस. व्हाट दे आर, ये क्या हैं ये? देखिए, एक होता है मैकेनिस्टिक मीन्स मैकेनिक डिसीजन इज वन ऑफ द रूटीन एंड repetitive in nature. It usually occurs in a situation involving a limited number of decisions variable where the outcomes of each alternative are known. For example, the manager of a bicycle shop may know from experience when and how many bicycles are to be ordered, or the decision may have been reached already, so the delivery is made routinely. Most mechanistic decisions problems are solved by the habitual responses. मीन्स जो मैकेनिस्ट डिसीजन मीन्स जो ऑलरेडी चलते रहते हैं वो डिसीजन, कि आपके फर्म को एम्प्लॉय को पता है कि कितनी बाईसाइकिल बननी है, कितने ऑर्डर्स आने हैं एनुअली, कितने ऑर्डर्स को हमें पूरा करना है. तो ये बार बार देने की जरूरत नहीं है. ये ऑलरेडी जो उनके जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके ऑलरेडी उसमें वर्क प्रोफाइल में जुड़ जाता है कि ये आपको डिसीजंस फॉलो करने हैं. एनालिटिकल डिसीजन वो होता है जो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ गई या कुछ अचानक कोई ऐसा आपका आ गया कि सिचुएशंस चेंज हो गई है, तो उस केस में जो आपको डिसीजन लेना पड़े, यानी कि जो ऑलरेडी डिसीजन चल रहे हैं ऑटोमेटिकली, मैकेनिस्टिक जो डिसीजन चल रहे हैं, उसमें अगर कोई और डिसीजन आपको ऐड करना पड़े, रिमूव करना पड़े, बेस्ड ऑन द एक्टिविटी या बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम या बेस्ड ऑन द जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उसको हम लोग एनालिटिकल डिसीजन कहते हैं. कि उसको फर्दर एनालाइज करें कि अगर हम इस डिसीजन को ले लेते हैं तो हमारी वर्क फोर्स कितनी लगेगी और आउटपुट हमें कितने दिन में मिल जाएगा. जजमेंटल डिसीजंस वो होता है जो प्रॉब्लम्स को एक तरह से सॉल्यूशन देता हो, बिल्कुल कि आपको अगर ये प्रॉब्लम है, ये डिसीजन इसको आप करो तो आपकी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएगी. ये इसको कहते हैं. ए जजमेंटल डिसीजन इन्वॉल्व ए प्रॉब्लम विद ए लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजंस वेरिएबल बट द आउटकम्स ऑफ डिसीजन अल्टरनेट्स आर अननोन. Many marketing investment resource allocation problems comes under this category. For example, marketing manager may have several alternative way of promoting a product, but he or she may not be sure of their outcomes. कौन सा हमें लेना है. तो good judgment is need to be increase the possibility of desired outcomes and minimize the possibility of undesired outcomes. तो बेसिक है इसका कि आपके मैनेजर के पास किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, उसमें वो एक जजमेंट, एक जज के रूप में उन डिसीजंस में से एक डिसीजंस को ले कि उससे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो उसको कहते हैं हम जजमेंटल डिसीजन. एडेप्टिव जिसको हम अडॉप्ट कर सकें फ्रॉम बोथ साइड, कंज्यूमर साइड भी एंड जो हमारी जो वर्क फोर्स है उसकी साइड भी, उसको हम adaptive decision कहते हैं. And adaptive decisions involve a problem with a large number of decision variable where outcomes are not predictive because of the complexity and uncertainty of such problems. So decision makers are not able to agree on the nature and the decision strategies. Such ill-structured problems usually require a contribution of many people with diverse the technical background. In such case, decision and implementation strategy have to be frequently modified and to accommodate. वही हमने कहा कि जो
एकोमोडेट कर सके, जिसको हम लोग सब एकोमोडेट, जिस डिसीजन हम सब एकोमोडेट हो पाए, कंपनी के जो फर्म में जो काम कर रहे हैं वो भी, वर्कफोर्स भी, और जो हमारी पॉलिसी है उनको हम लोग कहते हैं एडेप्टिव डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग अंडर डिफरेंट स्टेट और नेचर। देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि कोई भी डिसीजन यूनिफॉर्मली एवरीवेयर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता, ये टाइम टू टाइम एंड नीड के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। डिसीजंस अंडर सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी में उसमें कैसा डिसीजंस होगा, रिस्क होगा तो कौन से डिसीजंस होंगे, जो अनसर्टेनिटी होगी तो वहाँ पे कौन से डिसीजंस होंगे, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिचुएशंस हैं और उसी टाइप के डिसीजंस हम लोग लेंगे। और ये मैनेजर का काम है कि अनसर्टेनिटी में किस तरह के, सर्टेनिटी में तो बहुत नॉर्मल टाइप के डिसीजंस हैं जिनको मैकेनिस्टिक डिसीजंस कहते हैं, वो टाइम टू टाइम रूटीन मैटर में चलते रहते हैं, देयर इज नो नीड टू ऐड फर्दर डिसीजन। रिस्क में जैसे हमने कहा कि कहीं अर्थक्वेक आ गया है या कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, उस केस में आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा कि कंपनी के जो लॉस को वो कम से कम किया जाए और अपने जो वर्क फोर्स है उसको सेव किया जाए, तो ये अंडर द रिस्क। अनसर्टेनिटी चेंज होती हैं, कभी आपकी पॉलिटिकल प्रेशर काम चल है, कभी नहीं है, सोसाइटी कहीं आपको सपोर्ट कर रही है, कभी नहीं कर रही है, कभी वर्क फोर्स आपकी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो अनसर्टेनिटी है। ऐसे केसेस में आप जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी डिसीजंस फॉर एवर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, आपको डिसीजन भी टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड ऑफ द फर्म एंड दिस फैक्ट्री, जो भी आपका प्रोडक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट काइंड की सिचुएशंस में आपको डिफरेंट काइंड के डिसीजंस लेने होते हैं। मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, किस तरह के जो मॉडल्स हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम आते हैं, तो इकोनॉमिस्टिक मॉडल, सॉरी इकोनोलॉजिकल मॉडल है, जिसमें इकोनॉमिक मैन मॉडल कहते हैं, यहाँ की जहाँ व्यक्ति और जो इकोनॉमिक है, यानी कि जो पैसा है, जो दोनों के रूप में, दोनों को मिलाकर के जो डिसीजंस लेते हैं, दोनों को ध्यान में रख के सेंट्रली सोच कर जो डिसीजन लेते हैं, उनको इकोनॉमिस्टिक मॉडल कहते हैं। द इकोनॉमिस्टिक मॉडल रिप्रेजेंट द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू मॉडल डिसीजन प्रोसेस, जिस तरह के डिसीजन लेते हैं। दिस मॉडल रेस्ट ऑन टू एजम्पशंस। पहला एजम्पशन क्या है कि हमारे पीपल उसमें काम कर रहे हैं, कितने और कितने जो हैं, सॉरी, फर्स्ट it assume people are economically rational, and the second people attempt to maximize outcomes in an orderly and sequential process. So जो इकोनॉमिक जो रेशनली की बात कर रहे हैं कि हमें कम पैसे में लोग मिल जाएं, ऐसे डिसीजंस लें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट दें, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक मैन मॉडल। ऐसे डिसीजंस हम लें जिससे हमें कम पैसा, यानी कि हमारा जो इनपुट के रूप में जो हमारे जो सैलरी में, वेजेस में जा रहा है, वो कम से कम लगे और हमें आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो दिस इज द वन मॉडल। इस मॉडल के कुछ जो डिसीजन प्रोसेस हैं, डिस्कवर द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी, डिटरमाइन द गोल जो हमें अचीव करना है, एंड उसके बाद में हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर सपोज करिए यहाँ मैन और इकोनॉमिक की बात करें कि उन ऐसे केसेस में हमारी कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है तो फिर फर्दर वो कहाँ से ब्रीच किए जाएंगे, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हम लोग डिसाइड करें, कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड करें कि एज वेल एज लाइकलीहुड ऑफ द ऑकरेंस, अगर टाइम से कुछ भी अगर हैपन होता है तो उन सब के लिए हम प्रॉपर तैयार रहें। तो ये आपका हो गया एक मॉडल। इसमें दूसरा है बाउंडेड रेशनली मॉडल, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल है ये, कि कोई भी व्यक्ति के लिए हमें जो जहाँ पे हमें काम कर रहे हैं, जो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से एक्शन प्लान करना पड़े कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और ये जो दिया था हमारा an alternative model not only bound by the above assumptions has been, ये साइमन ने दिया था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। इसका नाम पूरा नाम क्या है इनका, बिनेट साइमन। So this is the bounded rationally model, also known as the administrative man model. At the name, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, model does not assume individual rationally in the decision process. Instead, it assumes that people, while they seek the best solution, usually settle for
much less because the decisions they confront typically demand greater information processing capabilities than they process. मीन्स यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट मॉडल का मतलब आपने देखा भी होगा, कई बार कोई अगर प्रॉब्लम्स डाल दी जाती है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, तो उसमें से जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन मॉडल्स को हम जिन डिसीजंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेन मॉडल्स में डाला जाता है. तो इसके कुछ the concept of bounded rationally attempts to describe the decision process, sequential attention of alternative solution, यानी कि जैसे हमने कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग में, उन सबको सीक्वेंस करते हैं और उसमें अगर एक प्लान ए डिसीजन हमारा नहीं काम कर रहा है तो दूसरा डिसीजन हम अल्टरनेटिव रूप में तैयार करें. यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक, हमेशा हम अपने भविष्य को देखें कि हम लोग किस तरह से हम लोग फॉरकास्टिंग करते हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे. डिसीजंस हमारा ऐसा हो मस्ट इट शुड बी सेटिस्फाई ऑल एंड एवरी इंडिविजुअल जो उसमें इन्वॉल्व है उस डिसीजन मेकिंग में, सब लोग उसमें सब उससे सेटिस्फाई हों उस डिसीजन से. देन इम्प्लिसिट फेवरेट मॉडल, ये भी एक मॉडल है. दिस मॉडल डील्स प्राइमरी विद नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जैसे हम नॉन प्रोग्राम जो सडन आता है या एकदम अचानक आता है उसको हम इम्प्लिसिट फेवरेट मॉडल कहते हैं कि उस समय बेस्ट सिचुएशंस, उस समय के सिचुएशंस में बेस्ट डिसीजंस कौन सा हो सकता है जिससे हमारी, जैसे मैंने कहा, कंपनी लॉस ना हो, हम सबको हमारी जो वर्क फोर्स है उसको हम प्रॉपर टेक केयर कर पाएँ, हम अपना प्रोडक्शन हमारा हार्म ना हो, प्रोडक्शंस भी उतना ही रहे. ये हमारा जो आता है वो इम्प्लिसिट फेवरेट मॉडल में आता है कि जितने भी हमें हमारा गोल हमारा प्रॉपर हमारा अचीव हो सके. ये था थोड़ा सा हमारा जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स थे, इनको थोड़ा सा और आप पढ़िएगा. तो ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दिया और आज टाइम भी कोई बात नहीं. सो दिस इज द small discussion about your MV005 and MV06. If you have any suggestion, any question, you are most welcome. Otherwise, best of luck for your examination and hope you have submitted your assignment well in time. So रामानंद मिश्रा जी, आप लगातार रहे हैं, कंचन तिवारी भी बीच बीच में आती रही हैं, कन्या जी भी आती रही हैं. थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विद अस. एक्चुअली सर मैं थोड़ा सा गांव चली गई थी इसलिए मिस हो गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है. तो अगर जब भी कभी जरूरत हो, दीज रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल ऑन रीजनल सेंटर चंडीगढ़ वेबसाइट ऑन द होम पेज. आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अगर उसको सुनेंगे दोबारा तो आपको वो रिमाइंड हो जाएगा चीज़ें कि हाँ किस किस तरह के इंट्रैक्शन, किस किस तरह के डिसीजंस थे. ऑल्दो पढ़ना तो मटेरियल पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा आपको रिवाइज और रिव्यू करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, okay. थैंक यू सर. Good work. Thank you, sir.